हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ की। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs, both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gained today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos. Not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you, both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also, you will be provided a compiled video of the whole month, both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors. Then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These, I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes. They are very helpful, and if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say, 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस देखेंगे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉम्बी शार्प जी की। ये यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। इनको अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अप्रूव किया है। इनको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन, कहां पर, इंडिया में। ये अपॉइंटमेंट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा करी गई है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनाइटेड, अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गटर्स, उनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट करी गई। इन्होंने यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया शॉम्बी शार्प जी को, एंड इनका काम क्या रहेगा, जो कोविड-19 से रिलेटेड आपका रिस्पॉन्स है, जो एक्शन प्लान होगा, हम कैसे प्रोसीड करेंगे अगर ज़्यादा वेव आ जाती है, उन सब को इनके अंडर लाया जाएगा। उस पर ये नज़र रखेंगे, देखभाल करेंगे उनकी कि कैसे हमें ये आगे प्रोग्रेस करना है। ऑलराइट, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे इनका काफ़ी फोकस रहेगा। ठीक है, चलो ये देखें, आप यहाँ देखें तो
ये हैं शोम्बी शाप जी, इनको अपॉइंट किया गया एज द रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया, किन के द्वारा? बाय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट है अशोक भूषण जी, इनको अभी चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इनको अभी चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, किसका? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का। किनके द्वारा इनको अपॉइंटमेंट मिली? बाय एसीसी के द्वारा। एसीसी होता है आपका अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। इनके अपॉइंटमेंट्स कमिटी के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी मोदी जी इस अपॉइंटमेंट कमिटी के हेड है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट के। इन्होंने जस्टिस अशोक भूषण, जो कि फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ये फॉर्मर जज थे किसके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। इनको अभी चेयरपर्सन बना दिया गया है एनसीएलएटी का। काफी इंपॉर्टेंट, 4 साल के लिए इनको ये अपॉइंटमेंट दिया गया है। 4 साल पहले हो जाए या फिर ये 70 साल की एज पहले हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उसके हिसाब से इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। ऑलराइट, तो नए चेयरपर्सन कौन है एनसीएलएटी के? वो रहेंगे अशोक भूषण। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये इनके साथ साथ एनसीएलएटी की दूसरी अपॉइंटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलएटी नए, वो है जस्टिस आर सुधाकर जी, रामालिंगम सुधाकर जी। रामालिंगम सुधाकर जी, इनको अपॉइंटमेंट किया गया एज द न्यू प्रेसिडेंट किसका? ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का। मार्क दिस, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और यहां पे बात करें तो ये है एनसीएलएटी, जो कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का। कंफ्यूज मत होइएगा। ऑलराइट, तो रामालिंगम सुधाकर जी, इनको प्रेसिडेंट अप्रूव बनाया गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट। अगर रामालिंगम सुधाकर जी की हम कुछ बात करें तो इनसे पहले जो जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बंसीलाल भट्ट, इन्होंने सर्व किया है एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलएटी। एंड जस्टिस अशोक इकबाल सिंह शीमा जी, जो कि एआईएस थे, इन्होंने सर्व किया है एज द ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलएटी। अगर रामालिंगम सुधाकर जी की बात करें हम, ये क्या थे? इनसे पहले, इस पोस्ट से पहले, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से पहले, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे मणिपुर हाई कोर्ट के। फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये मणिपुर हाई कोर्ट के, ठीक है। रामालिंगम सुधाकर जी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये दोनों, याद रखना। ये है एनसीएलएटी, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, इनके प्रेसिडेंट बने रामालिंगम सुधाकर जी, जो कि पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस थे मणिपुर हाई कोर्ट के। और अगर हम बात करें अशोक भूषण जी की, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर हरि कुमार जी की। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगी, याद रखना। आर हरि कुमार जी, इनको अपॉइंट किया गया, इनको ऐसे लिख सकते हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी, इनको अपॉइंट किया टू द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। काफी इंपॉर्टेंट, ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये इनसे पहले कौन थे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? वो थे करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह इनसे पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, जिनको रिप्लेस करेंगे अब आर हरि कुमार सर, एडमिरल आर हरि कुमार। काफी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट रहेगी, आपको मार्क करके चलना है, ठीक है। इससे पहले ये फ्लैग ऑफिसर थे, कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। आई रिपीट, आर हरि कुमार सर इससे पहले फ्लैग ऑफिसर थे ऑफ द कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड के, और अब ये क्या बन गए हैं? नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इसी के साथ साथ आप याद रखिए, अब जो हमारे नए चेयरपर्सन ऑफ द चीफ ऑफ कमिटी हैं, चीफ ऑफ कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये भी। नए चेयरपर्सन ऑफ द चीफ ऑफ कमिटी ये कौन बनाए गए हैं? एमएन नरवाने सर। ये क्या है? ये आपके CAS हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये। ऑलराइट, चलो आप इधर देख सकते हैं, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार जी को अब क्या बना दिया गया है? ये हमारे नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ अपर हाउस। अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। और लोअर हाउस कौन सा होता है? लोकसभा। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ अपर हाउस किनको अपॉइंट किया गया? पीसी मोदी जी को। सो पीसी मोदी जी को क्या बनाया गया? नया सेक्रेटरी जनरल ऑफ अपर हाउस। इस पोस्ट से पहले ये क्या थे? फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ सीबीडीटी। ये पहले सीबीडीटी के चेयरमैन थे फॉर्मर, अब इनको नई पोस्ट मिल गई है सेक्रेटरी जनरल ऑफ अपर हाउस की। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इससे पहले अगर मैं बात करूं
फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ अपर हाउस कौन थे? वो थे PPK रामाचार्युलू जी। इनको अब इनकी ये पहले ये थे, लेकिन अब इनको क्या बना दिया गया है, ये एडवाइजर की पोस्ट दे दी गई है इनको इन राज्यसभा सेक्रेटरीट 1 साल के लिए। और नए सेक्रेटरी जनरल अपर हाउस के बन गए हैं PC मोदी जी। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट याद रखिएगा ऑफ अपर हाउस। आप इनको देख सकते हैं, फॉर्मर CBDT के चेयरमैन PC मोदी अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली को अभी चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। अगर हम ICC की बात करें तो ये 1909 में फॉर्म किया गया था। दुबई में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। और अगर प्रेसिडेंट की पूछूं और CEO की पूछूं, अभी इनकी CEO की भी नई अपॉइंटमेंट है, वो है जॉर्ज ग्रेग वो है जॉफ GEOFF ऑल्ड्रिस। जॉफ ऑल्ड्रिस नए CEO बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। एंड जो अगर मैं फॉर्मर चेयरमैन की बात, फॉर्मर CEO की बात करूं या फॉर्मर चेयरमैन की बात करूं पहले, तो कौन रहेंगे ICC के फॉर्मर चेयरमैन? वो है ग्रेग बार्कले, फॉर्मर चेयरमैन रहेंगे। एंड जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है? सौरव गांगुली ICC के। सौरव गांगुली प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट BCCI के, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आप इधर देख सकते हैं BCCI के फॉर्मर प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को चेयरमैन की पोस्ट मिली है ICC में। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगर इसके साथ साथ मैं आपको बोलूं जो हेड कोच कौन बने हैं, नए हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम्स मेंस की सीनियर के टीम के कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। ये भी याद रखना, राहुल द्रविड़ नए कोच बने हैं मेंस सीनियर क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट हम बात करेंगे विवेक जौहरी जी। इनको चेयरमैन की पोस्ट दी गई है ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। काफी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट रहेगी, आपको याद रखना है किनको ये दी है। ये है विवेक जौहरी जी। ये क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं। कहां के? CBIC के चेयरमैन बने हैं। इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की गई? ACC के द्वारा की गई। ACC के हेड कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड ACC क्या होता है? अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई चेयरमैन की ऑफ CBIC विवेक जौहरी जी की। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, ये सक्सीड किसको करेंगे? ये अजीत कुमार जी को सक्सीड करेंगे, विवेक जौहरी जी। ठीक है, CBIC के नए चेयरमैन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूमियो किशिडा। फूमियो किशिडा ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। इनको री इलेक्ट किया गया है। री इलेक्ट का मतलब क्यों? क्योंकि याद हो अगर आपको, जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे योशिहिडा सुगा जी, उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दे दिया था सितंबर 2021 में। तो उनके बाद टेम्परेरी बेसिस पे फूमियो किशिडा को अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर। एंड अब परमानेंट इन्हीं को अपॉइंट कर दिया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, चलो इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट अगर मैं बताऊं, मुझे बताओ नए प्रेसिडेंट ऑफ बुल्गारिया। प्रेसिडेंट ऑफ बुल्गारिया कौन रहेंगे? नए प्रेसिडेंट बुल्गारिया के रूमेन राडेव प्रेसिडेंट रहेंगे बुल्गारिया के। इनके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम मिनिस्टर, मुझे बता दो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान किनको अपॉइंट किया गया? वो है अब्दुल्ला हैमडॉक को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी गई सूडान की। ये देख सकते हैं फूमियो किशिडा जापान के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनीता आनंद। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, ये इंडियन कैनेडियन है, इंडियन कैनेडियन ओरिजिन एज वेल एज फर्स्ट हिंदू कैनेडियन जो कि कनाडा के किसी फेडरल पोस्ट पे इलेक्ट की गई। और ये किस भी पोस्ट पे आई है? डिफेंस मिनिस्टर इलेक्ट की गई है कनाडा की। 43rd डिफेंस मिनिस्टर ये अपॉइंट की गई है कनाडा की, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इंडियन कोई भी अगर किसी बाहर के देश में जाके कोई अपॉइंटमेंट लेता है तो उसको ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट समझो। तो अनीता आनंद को अपॉइंट किया गया 43rd डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ये किसको रिप्लेस करेंगी? ये रिप्लेस कर रही हैं हरजीत सज्जन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरिनारी वाटानाबे की। इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। काफी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट रहेगी, याद रखना। ठीक है, मोरिनारी वाटानाबे इनको इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निकोले सुआका। इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है रोमानिया का। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, प्रेसिडेंट कौन रहेंगे?
रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर तो है निकोला सिवाका, लेकिन प्रेसिडेंट कौन है? वो है क्लॉस ओहानेस। इन्होंने नॉमिनेट किया था फॉर्मर आर्मी जनरल निकोल सिवाका। ये फॉर्मर आर्मी जनरल हैं, इनको अपॉइंट किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और ये अब नए सेलेक्ट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर रोमानिया के। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बात करूं कुवैत के, कौन रहेंगे? शेख सबा अल खलीद अल सबा, ये यहां के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कुवैत के। नेक्स्ट आ जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक, पीटर फियाला। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो आपको पता होनी चाहिए, वो है थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये बुक इनके द्वारा ऑथर की गई थी, पीटर फियाला के द्वारा, और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं चेक रिपब्लिक के। इंपॉर्टेंट याद रखना। ये किसको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड कर रहे हैं एंड्रेज बाबिस को। ठीक है, ये सक्सीड करेंगे पीटर फियाला एंड्रेज बाबिस को। नेक्स्ट हम बात कर चुके हैं कि परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कौन बन गए हैं? जॉफ ऑल्ड्रेस। ये जॉफ ऑल्ड्रेस ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, एक चीज तो ये याद रखना। ठीक है, और आईसीसी की बात करें तो दुबई में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। 1909 में ये बना था। और जो नए चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं नए चेयरमैन आईसीसी के? वो रहेंगे सौरव गांगुली। नेक्स्ट, और अगर मैं बात करूं फॉर्मर सीईओ कौन थे? वो थे ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट हम बात करेंगे अहमद नसीर अल रईसी की। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट से बिलोंग करते हैं। इनको अभी नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंटरपोल का, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इनका नया प्रेसिडेंट किन को अपॉइंट किया गया? अहमद नसीर अल रईसी की। ये किन को रिप्लेस करेंगे? ये साउथ कोरिया के किम जोंग येन, इनको रिप्लेस करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरपोल भी बोला जाता है। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। अहमद नसीर अल रईसी प्रेसिडेंट बने हैं इंटरपोल के, जो कि यूएई से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेसर बिमल पटेल की। इनको इंटरनेशनल लॉ कमीशन में अपॉइंट किया गया फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। काफी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट रहेगी, तो मार्क करना। प्रोफेसर बिमल पटेल ये वाइस चांसलर थे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के, एज वेल एज ये मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया के। इनको इंटरनेशनल लॉ कमीशन में अपॉइंट किया गया 5 साल के लिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंडिया को अभी री इलेक्ट कर लिया गया है टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। 4 साल के लिए इंडिया को अपॉइंट किया गया है, री इलेक्ट किया गया है। 2021 से लेकर 2025 तक इंडिया को री इलेक्ट किया गया है आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। काफी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट रहेगी, तो याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने अभी ईडी होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ईडी के डायरेक्टर के एसके मिश्रा जी का जो टाइम पीरियड है 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ईडीज डायरेक्टरेट एसके मिश्रा का टाइम पीरियड जो था टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब वो 2022 में जाके रिटायर होंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि शील वर्धन सिंह, इनको अपॉइंट किया गया एस सीआईएसएफ का डीजी। सीआईएसएफ क्या होता है? सीआईएसएफ होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनके डीजी किन को अपॉइंट किया गया? शील वर्धन सिंह को। और मैं एनडीआरएफ की बात करूं तो एनडीआरएफ होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इनके डीजी किन को अपॉइंट किया गया? अतुल करवाल जी को। अतुल करवाल जी को एनडीआरएफ का डीजी। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of times with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam, and many others detail. Apart from this, you can see here we are covering the whole syllabus here, like data analysis on D3. Then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare, that will help you, or they are the expected questions that will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis, and they will help you to boost your preparation.
So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862, and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.